Hello everyone, so finally the BitSat 2026 review is here. From this video you will get a rough idea कि एग्जाम कैसा था. डिफिकल्ट आ रहा है, मीडियम आ रहा है, इजी आ रहा है, मेंस लेवल का आ रहा है या फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे, कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिए. यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग. तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज काफी ज्यादा चांसेस है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ आपके आने वाले पेपर को लेके. So without wasting any more time, let's start this video. I think the paper was a little tricky. I think I failed for time management. I think that was the main issue here. So, like, if you had to rank the subjects according to how difficult it came, how would you rank them? I think at the top would obviously be English and LR. They Okay, were easy. easy. Chemistry, followed by physics, and I think chemistry and physics were both pretty okay, like on the easier side. Yeah. But math was a little tricky. Math was a little tricky. So, Yeah. the math was the hardest one. You said. Yeah, math was hard. Okay, so if you have any tip about how to give a BitSat paper according to your experience, what would it be? I think definitely you need to manage your time well. Is there any highlight topic that came up very like frequently, an important topic that you say that you should definitely do it? I According think to this from paper. math, maybe conic sections. Yeah. Conics, there was a lot of conic sections and a lot of stats. And chem was pretty inorganic heavy. So, like, syllabus of BitSat is very different from JMains. Like, Yeah. there are so many topics that are not there in JMains. Yeah. So, did any questions come from those topics? From solid state, there was one question in chem. Nothing else that I noticed. मैथ्स मॉडरेट थी बट लेंदी थी. फिजिक्स वाज डूएबल. केमिस्ट्री वाज मेजॉरिटी वो थी थियोरेटिकल कि मतलब ऑर्गेनिक के आपको रिएक्टेंट्स आते तो डायरेक्टली हो जाएगा. और फिजिकल की उतने नहीं थे पर कम थे, ठीक ठाक थे फिजिकल की, बट फिजिकल की मेरे को वो लगे वेरी लेंदी एंड टफ मेरे लिए. और मतलब अगर कहोगे कि एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन थे या फॉर्मूला बेस्ड? केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन थे. फिजिक्स वाज प्राइमरली फार्मूला बेस्ड ही थी और मैथ्स तो जो जैसी रहती है वैसे. ठीक है. और मतलब ऐसे कोई टॉपिक वाइज की इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे? कोऑर्डिनेट से बहुत क्वेश्चन आए थे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3-4 थे और फिजिक्स में मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आए थे हाँ. भर भर के. एंड केमिस्ट्री वाज अमाइन से क्वेश्चन आए थे. ठीक है. और जैसे लोग ज्यादातर फाइनल टॉपिक नहीं पढ़ते, मॉडर्न फिजिक्स, बायोमोलिक्यूल, उसकी वेटेज कैसे? बायोमोलिक्यूल्स का मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा. एंड मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इंग्लिश एलआर अच्छा? इंग्लिश एलआर वाज वेरी इजी, उसमें कुछ नहीं था. Also, while asking students, we got to know many were not able to score good in their BitSat exam because they are not giving any relevant mock test. मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है कि BitSat is a random exam. आपका इजी शिफ्ट भी आ सकता है, टफ शिफ्ट भी आ सकता है. You have to be prepared for all the levels. So you need a set of mock test जिसमें आपकी हर लेवल की प्रैक्टिस हो रही हो. See, at last it's your preparation only. But if you want an unfair advantage, you can definitely go with Crackit mock test. Because ये साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने exactly same या फिर ज्यादा स्कोर किया in actual BitSat exam as they were scoring in Crackit mock test. And last year भी same story थी. You can check the real reviews. बाकी आप कोई भी mock test दे रहे हो, it's better to analyze them properly. वरना mock test का कुछ फायदा नहीं होता. But in case of Crackit, Bitscience will give you personalized plan based on your mock score so that you can improve in your next mock and touch a score of 300 plus in actual BitSat exam. Because सबकी प्रिपरेशन अलग होती है. एक कॉमन स्ट्रेटेजी से किसका सिलेक्शन नहीं हो सकता. ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन. काफी बार टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं समझता है. तो फॉर दैट ऑल्सो इन क्रैकिट देयर आर वीडियो सोल्यूशंस एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यू आर लर्निंग फ्रॉम द टेस्ट. एंड ये तो फायदा होना चाहिए मॉक टेस्ट का टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो आपने कभी पढ़े ही ना हो. इट्स अ हार्ड टाइम. यू कैन डेफिनेटली चेक क्रैकिट फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट. अदरवाइज जो दे रहे हो वो देते रहो. लेट्स मूव टू अदर रिव्यूज. Paper was average. I could do better. And topics में सबसे ज्यादा questions किससे आए ऐसा कुछ? सबसे ज़्यादा मैथ्स में hyperbola, like 11th से आए ज़्यादा hyperbola, parabola and all. Physics में thermodynamics थे, maths में there were integration, this and that. Last के topics होते हैं पीछे में like modern physics and biomolecules. उसमें से questions देखे? ज़्यादा नहीं देखे. Logical reasoning was easy, but the PCM part was kind of tough. Okay, so do you have a step like for students attempting in BitSat 2? I do have an advice कि BitSat prep guides जितने अच्छे से रटो तुम उतना बेटर रहेगा, बिकॉज थियोरी बहुत पूछी है केमिस्ट्री के. लेवल एक बार बताइए. आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे थोड़े. जो ये है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ था? नहीं, जो चैप्टर्स यूजुअली बहुत कम आते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे थे. एलआर मुश्किल था. मैंने कुछ 20 करे थे, 6 गलत हो गए. अगर टिप दोगे अगली जनरेशन को भाई? फॉर्मूले हर उसके फॉर्मूला शीट पढ़ जाओ, बहुत ही इजी पेपर था. मतलब फॉर्मूला बेस्ड था ज्यादा. अगर डिफिकल्टी बतानी है तो डिफिकल्टी कैसे होगी? Difficulty, it was not hard. Physics था, like for me physics was tough. Maths के
क्वेश्चन हो ही गए थे लाइक आधे से ज्यादा आसान था. या लॉजिक रीजनिंग वाज वेरी इजी So physics being the hardest one, right? Okay. So एक चीज बता, इंग्लिश वाला का लेवल क्या था? इजी था या या इट वाज इजी मतलब अगर ना पढ़े तो हो जाएगा? या मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था हाँ. इंग्लिश में पेपर का लेवल कैसा था मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मीडियम, इंग्लिश एलआर कैसा था वो तो बहुत आसान था, वही आसान था उस पूरे पेपर में मेरे लिए. जैसे टॉपिक वाइज अगर कहेंगे कि इस टॉपिक से ज्यादा आ रहे थे तो फिर वो क्या था प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा था उससे और वो डेविएशन वाले क्वेश्चंस थे और मैथ्स में. जैसे जो फाइनल टॉपिक्स है जैसे बायोमोलिक्यूल होता है या ये सब होता है बायोमोलिक्यूल नहीं आया. हाँ तो उसके मतलब कुछ का ही नहीं नहीं, बायोमोलिक्यूल नहीं आया. पीसीएम मतलब लेवल क्या था इजी मॉडरेट हार्ड मॉडरेट से कोई टॉपिक में कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे ये एलपीपी से आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे. ठीक है और जैसे कहेंगे लोग यूजुअली लास्ट के टॉपिक जैसे मॉडर्न फिजिक्स बायोमोलिक्यूल इन पे उतना ध्यान नहीं देते उसका कुछ ज्यादा वेटेज मॉडर्न फिजिक्स से एक तो ही आया था, उतना नहीं आया था मॉडर्न फिजिक्स से. और बाकी बायोमॉलिक्यूल से मेरे को नहीं दिखते. ठीक है और ज्यादातर ऐसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे या फिर फॉर्मूला बेस्ड एनसीईआरटी मैं बोलूंगा पेपर तो लेंदी था काफी, जैसे बोलते हैं बिट सेट स्पीड बेस्ड होता है, काफी एक्यूरेसी बेस्ड होता है. और इंग्लिश एलआर भी सही था इंग्लिश एलआर तो इजी था. टॉपिक वाइज ज्यादा किस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन देखो 11th का तो काफी आ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज से आ रहे हैं क्वेश्चन. बायनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ रहा है मुझे. फिजिक्स में उसके भी आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स के आ रहे हैं, ऑसिलेशन के आ रहे हैं. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस आ रहे हैं काफी सारे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये स्टीफेंस रिएक्शन, ये सब आ रहे हैं काफी. आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी. एंड अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. पूरी जान लगा दो अपना बेस्ट देने में. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ माई सब्सक्राइबर गॉट एडमिशन इनटू बिट्स पिलानी. एंड डेफिनेटली एज अ बिट्सियन आई कैन से यू अब भी मेहनत कर लोगे ना तो काफी वर्थ इट होगा आपका वो 4 years. एंड अगर आपका एग्जाम हो गया है और वो अच्छा नहीं गया है तो डोंट वरी, यू हैव सेकंड अटेम्प्ट. अपनी गलतियों को एनालाइज करो और सही गाइडेंस लो. इनकेस आपके पास कोई गाइड करने के लिए नहीं है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन क्रैक इट फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी इन विच बिटसेंस आर गाइडिंग फॉर फ्री. तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो बिटसेंस से विदाउट एनी कॉस्ट. ऑल्सो अगर आज आपने एग्जाम दिया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू स्कोर्ड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट देयर. एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्रैक इट टेस्ट सीरीज. इट कैन बी अ गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. ऑलरेडी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस. ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस पढ़ाई करो, ज्यादा पैसे वेस्ट भी मत करो. एवरीथिंग इज फ्री आउट देयर. जो चीज रिक्वायर्ड है और इंपॉर्टेंट है वही परचेस करो. ऑलरेडी फॉर्म फीस काफी ज्यादा होती है तो ट्राई टू यूटिलाइज फ्री रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.